अच्छा, ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन अभी ना दोनों को? यस सर। अच्छा, तो इसमें यह है कि हम लास्ट लेक्चर में जो एंड पे हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे थे, उसको मैं रिपीट तो नहीं करूंगा, लेकिन उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि we started with a sum of, let me just write that down again. This was a sum of n Bernoulli random variables, yeah, sigma xi, और आपको ये भी पता है कि ये बायनोमियल था, लेकिन मैं यहाँ पे बायनोमियल से ज़्यादा इस पे फोकस कर रहा हूँ कि इट वाज अ सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स। एंड ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है? Which means that they had they all had the same mean and same variance and so on. So when we allowed this n to go larger and larger, it turned out that this sum, not this sum directly, but another quantity, which was the standardized sum. Yeah. So we subtracted from this sum the mean, yeah, which was the mean of this sum, the mean of the binomial, and we divided this by the standard deviation. Yeah, standard deviation, if you remember, was np times 1 minus np square rooted. This quantity turned out, this approached a continuous random variable z, and that continuous random variable z had this PDF. It had this PDF. You will see this PDF very often, and this goes by the name standard normal density. It is density, of course, normal because it's called normal distribution, standard because it actually is a standardized quantity. Now I will not go into that proof again, but the proof had only two assumptions which were important. One assumption, I'm just highlighting two assumptions. One assumption was that we had independent and identical distributions. Yeah? I think there were the only two assumptions, independent and identical. So which means that if we replace this sum by any sum, let's say I choose any sum of random variables, yeah, not just Bernoulli. It could be geometric, it could be Poisson, it could be binomial as well. Yeah, I'm adding binomial, and I have another sum, and I standardize this again. So I standardize that sum from, I get that z. It will happen the same. Yeah. So in that proof was not, I mean, it was easy to follow because we knew binomial and Bernoulli, but that proof could be repeated for any other sum of random variables. All you need is this condition. Let me change the color, it's very important. This condition, as long as you have a sum of independent and identically distributed random variables, and you have many of them, large number, important. So actually there are two assumptions, IID and large. Yeah, it's not that you just add a few numbers, a few random variables, then this will happen. You will always arrive at this distribution. Yeah. So this is so important, this result, that this is given a name. It's called the central limit theorem. Just remember this, central limit theorem. And now, why is this important for you to understand this interpretation, not just the formula? Because this is what happens in engineering. In engineering, whenever you see something random, let's say there is a quantity which is randomly varying, and you have no idea what's going on, you can safely assume, of course not always, but in many cases, that there are many sources contributing to that quantity. Let's say you are picking some noise, yeah, कोई आवाज़ आ रही है अजीब गरीब किस्म की, तो आप कह रहे हैं कि यार इसमें ये ट्रैफिक की आवाज़ भी हो सकती है, ठीक है, ये जो है ना मशीन्स की आवाज़ हो सकती है, फैक्ट्रीज की, ये लोग आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल इंडिपेंडेंट सोर्सेज.
So when I add them and then when I average them, the standardization भी उसमें आ गई ना, standardization. So because it is a kind of averaging, so it will ultimately every time I'll get the same distribution. और इस डिस्ट्रीब्यूशन की जो डेंसिटी है वो इस तरह की होती है, जीरो मीन, क्योंकि आपको पता है हमने देखा था कि कोई भी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल हो उसका मीन जीरो होता है और वेरिएंस उसका 1 होता है, तो इसका वेरिएंस 1 होगा, मीन इसका 0 होगा. सो दैट इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड गॉसियन. इस फॉर्म में इसको स्टैंडर्ड गॉसियन कहते हैं. अब हमारे पास ये आ गई डेंसिटी, ये आ गई. अब इस डेंसिटी को चूंकि ये बहुत बार बार आप देखेंगे तो ये तो ठीक है, आप एफ जी लिखते हैं, ये एक्सपोनेंशियल लिखते हैं, ये 1/2 पाई ये सारा, लेकिन जस्ट टू मेक श्योर दैट वी हैव अ सिंबल फॉर इट, it's called phi. Yeah, if you don't want to use phi, that's also okay, don't problem, you can also use that, because we will see this, we will use this notation as well, that z is normal distributed, n for normal, और यहाँ पे हम 2 पैरामीटर्स लिखते हैं, 0 for the mean, 1 for variance. You can do that as well, which means that you can also use, if you want, you can also use this notation n, yeah, और ये सेमीकोलन के बाद ये 0 और 1 इधर आ गए, और यहाँ पे मैं चूंकि वेरिएबल आर्गुमेंट मेरा z है तो मैं यहाँ पे z, तो आप इसको इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, इस तरह लिखें, it's up to you. But what is important is the name. It is the standard normal density. And now whenever you have a density, you are automatically interested in the CDF. How to go from density to CDF? You just integrate from minus infinity to any point z. So for example, आप इस point में interested है z पे, आप क्या करते हैं, all points till z इनको आप integrate करें and you get your CDF, because you will see the CDF too often, so उसके लिए अपना सिंबल है phi. तो ये phi और ये अपर केस phi, ये phi उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना, वो जो हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के लिए यूज कर रहे थे वो ऐसे था, और ये मेरे ख्याल में ऐसे है. It shouldn't matter too much for you. So let me clean this now. Now one thing which we can do now is that although we got a distribution that Zn approaches Z, for which I know the density, yeah, which is this, I'm just repeating, divided by 2 pi square rooted, and I'm also calling it phi z, and I also know it's CDF. But remember, the actual sum from which we started was not Zn, it was Sn. And Sn, what we did with Sn, we subtracted from it the mean and then divided it on the standard deviation to get our Zn. Now we know everything for Zn. Now let's see how to get that Sn back. Yeah, so how do I get this Sn back from Zn? Let's take this sigma back to that, so I'll get sigma times Zn, and let's take that minus mu to the other side, so I'll have mu, and I can get my Sn back. So I will now use the same formula to see how do I get, for example, instead of Zn, now I have a new variable which is Z, the standard normal, yeah, the Gaussian. So if I multiply that by sigma and I add that mu again, I will get a new variable, let's call it x. So if Z is the limit of Zn, the standardized one version, x will be the limit of Sn, and all I need is this transformation. This is the transformation. Yeah. So this is very easy because I know that this should be probability of x less than or equal to x. Yeah. Now what is this x? X I know is z sigma z plus mu. So it is like this, you are asking for this less than or equal to x. Because you know everything about z, so let's rewrite this in terms of z. So
Now I can frame this question as if I'm asking a question about z. So z is less than or equal to x minus mu. That mu will go there, and then I divide this. Yeah. So I can change that question. Let me just change that question to a question about z less than or equal to x minus mu over sigma. X minus mu over sigma. So you see that, but that is what I mean by this phi. Phi is the CDF. Yeah. Yeah, this is the CDF. So I can write the CDF of that x in terms of the CDF of z. This is basically the CDF of z. All you are doing is you are replacing z with this thing, and that thing comes from here. Yeah. This is a transformation trick which we are using all the time. Yeah. So what that means is that, remember, I am using that same integral. All I'm doing is changing the limit, because this z, remember, this z is not appearing here inside. That's a dummy variable. This z is actually appearing in the upper limit. Yeah, it's important. So if I change this z with x minus mu over sigma, that same thing has to appear as an upper limit, and nothing else will change. This 1 over 2 pi square root doesn't change. dt doesn't change. Exponential minus t squared over 2 doesn't change. This is what I mean by just the Gaussian distribution. Yeah, when I say standard Gaussian distribution, I mean this case, the z, yeah, which has zero mean, standard deviation 1. But if I am talking about this x is general. Yeah, what is the mean of x? Mu. Because you see, this x comes from xn, from Sn. I know that Sn had a mean of mu, because that was the starting. I don't need to prove this. That original sum of n Bernoulli random variables was a binomial, and I know it has a mean mu, and it has a standard deviation sigma. So if I now take its continuous version x, it will also have the same mean, although I can still prove it, but I don't need to prove it. So now I have a more general version of the Gaussian distribution, which I will write in this way. Yeah. X is normally distributed with mean mu and variance. Remember, the parameter is not sigma, it's sigma squared. Yeah. And that standard deviation is, that standard normal distribution is a special case. Zero mean, unit variance. This one is actually 1 squared. So now you only need to understand standard normal, because for standard normal, you will have, let's say you have a table. Yeah. So you have a table for values of z, for values of that density, and you can also have a table of the CDFs, yeah, the uppercase. So if I have this table, I don't need to have a separate table for x, because I will simply use this transformation. One more thing, you should actually notice one thing here, that to go from that integral to this integral is simple, because you are only replacing this z by this thing, because you need to respect this equation. This equation basically forces you to replace that z. You see, I am starting with x is equal to mu plus sigma z. So z is x minus mu over sigma. It's the same thing, yeah. So if this x takes a value small x, so subtract mu, divide by sigma, that will be the value of small z. So small z is replaced by that. That was easy. What you could find difficult is to go from the PDF of z to the PDF of x. So that is not a problem, because all I need to do is to differentiate the CDF, and you need chain rule of differentiation. So let me just write it for you separately. Let's say I have my CDF, which is this CDF of z evaluated at x minus mu over sigma, and now I want to differentiate this with x. So what will I do? I will differentiate this with the argument, yeah, and because
this is x and this is not x, this is x minus mu over sigma. So I need chain rule. So now I need to differentiate the argument with respect to x. Minus mu is constant, and 1 over mu time 1 over sigma times x. So the derivative of that will be 1 over sigma. That 1 over sigma has to appear here. Remember, this is important. This is because of chain rule of differentiation. You are first differentiating phi, and this was not x. If this was x, then it would have been easy, because that is x minus mu over sigma. Then you need to differentiate that thing again with respect to x, and that's why you have 1 over sigma. And that's why the PDF of a general normal distribution looks like this: exponential, you see, x minus mu over sigma squared 2 divided by 2, and this thing. This is called the normal or Gaussian density. You see, you don't write standard here. So we will see this in many examples. अभी तक कोई question है इसमें? It was more or less related to the previous lecture. Okay. So let me give you one more reason why this Gaussian distribution, you will see it many times in many applications, even in other courses like communications or even in masters. So you cannot say that, okay, this central limit theorem which we just discussed above, that's not the only reason. There is another reason why we will see this Gaussian distribution again and again and again and again. And you need to know why it appears in every application. Yeah, you will see it in so many applications that you will wonder, okay, how on earth can this Gaussian come up again and again? So there is another reason for that. I'll just briefly mention that. So let's say that you have some unknown quantity. Yeah. Now it is not only unknown, it's also random. So there are two problems. Yeah. So you will definitely model it as a random variable. Yeah. But you have no clue. You have no idea what is the distribution. It is uniform, it is binomial, nothing. So what do? Normally, if I have no idea, and if I tell you, use your common sense. Yeah. Let's say this is x-axis, and I say, okay, there is a variable, and I know the smallest value. Let's say the smallest value is 2, and the largest value is 10, and I don't know anything. What I do know is that there is no value possible below 2 and no value possible above 2. What will be your first attempt of the distribution? कि इसका distribution क्या होना चाहिए? आपको मैंने कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ मैंने ये बता दिया कि इसके ये एक वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल है, और ये इसके लिमिट्स है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट. तो आप गेस करें, कोई वैसी तुक्का मारें कि इसके लिए आपके ख्याल में डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए. और लेट्स से मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये भी पता चल गया कि ये डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है. तो लेट्स से मैं आपको बता दूं कि ये कंटिन्यूस है, डिस्क्रीट नहीं है, कंटिन्यूस है. क्योंकि आपको कुछ नहीं पता. मैंने आपको पहले भी बताया था, व्हेन यू हैव नो आइडिया, जिस तरह प्रोबेबिलिटी की मैंने बात बताई थी कि जब आपको किसी कॉइन के बारे में ना पता हो तो आप 50-50 कह देते हैं ना. तो यहाँ पे भी आप क्या कहेंगे कि यू विल से दैट ऑल दीज वैल्यूज आर इक्वली लाइकली. कंटिन्यूस में इक्वली लाइकली का मतलब ये है कि दे मस्ट हैव द सेम कांस्टेंट पीडीएफ. तो कांस्टेंट पीडीएफ में पीडीएफ क्या बन जाएगा इसका? 1/10 - 2. ठीक है. So in general, if this is A and if this is B, you will write. So you will go for a uniform distribution. तो ये एक बात यहाँ से ये भी क्लियर हो गई कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आप कब एज्यूम करते हैं, जब आपके पास कोई आइडिया ना हो. लेकिन लेट्स से मैं आपको एक थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ. ठीक है. I again start with an unknown, yeah, and random variable, no clue. But this time instead of giving you ranges, instead of giving you the smallest and the larger value, let's say I give you the mean and variance. मैं आपको ये कहता हूं कि एक क्वांटिटी है और ये मैं एक्सपेरिमेंटल बुनियाद पे कह रहा हूं.
मेरे पास और कोई थ्योरी नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने एक क्वांटिटी है जिसको मैंने मेजर किया है काफ़ी अरसा, ठीक है ना, हज़ारों मिलियंस हिसाब से मेरे पास मेजरमेंट्स हैं, और उन मेजरमेंट्स को मैंने नोट करके मेजरमेंट से मैंने उसकी एवरेज निकाली है, एवरेज मुझे पता चल गई है, और उसकी वेरिएंस निकाली है, वेरिएंस को स्क्वायर रूट लेके। सो यू नो दैट मीन एंड वेरिएंस कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम डेटा, यू नो दैट ऑलरेडी। आप अपनी क्लास का वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये इक्वली लाइकली है और ये यहाँ पे कोई वैल्यू है और यहाँ पे है यूनिफॉर्म, नहीं। आई मस्ट टेक दीज टू थिंग्स इनटू अकाउंट। ये बात समझ आ रही है? सो अब मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये अस्यूम करता हूं कि ये x है, ठीक है, ये मीन वैल्यू है, और इस मैं एज्यूम करता हूं कि अगर ये कंटिन्यूस क्वांटिटी है तो पीडीएफ इसका क्या होगा। इट शुड हैव अ पीडीएफ, ऑल्दो आई हैव नो आइडिया, इट शुड हैव अ पीडीएफ व्हिच हैज अ पीक वैल्यू एट मीन। ये अगर गलत भी है मैं एज्यूम तो कर सकता हूं ना, कुछ ना करने से बेहतर है, समथिंग इज बेटर देन डूइंग नथिंग। So I assume that the PDF has a peak value at mu, और सिग्मा के बारे में मुझे नहीं पता कि सिग्मा को कैसे इसमें डाल दूं। सो और ये भी मैं एज्यूम करता हूं कि सिमेट्रिक है, क्या, कि जितना इस साइड पे है उतना इस साइड पे है, जिस तरह आपके मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। सो आई एज्यूम माई डेंसिटी एफ ऑफ एक्स टू बी सिमेट्रिक एंड पीक्ड एट द मीन म्यू। अब मैं क्या करता हूं कि चूंकि मेरे पास डेटा है, so let me approximate this by a Taylor series। और टेलर सीरीज में मैं कोशिश करता हूं कि टेलर सीरीज में मैं सिर्फ शुरू की कुछ टर्म्स रख लूं, सेकेंड ऑर्डर। सो नॉर्मली आप if you have this f of x, you will start by f of mu, the first term, and then you will say x minus mu, and then the first derivative of mu, and then x minus mu whole squared, and then the second derivative of mu, and so on। and let's say मैं बाकियों को जीरो एज्यूम करता हूँ। लेट्स से मेरी assumptions रीजनेबल है तो मैं कह सकता हूँ कि यार इससे इतना दूर नहीं जाएगा ये। सो इशू इसमें यह आ रहा है कि नॉर्मली जो पीडीएफ्स वगैरह होते हैं ये इतने स्मूथ नहीं होते जितना मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। सो इफ़ यू हैव सम एक्सपीरियंस विद लॉगरिथम, जब आप किसी फंक्शन का लॉग ले लेते हैं वो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। आप ज़रा रिकॉल करें ना, लॉग के बाद वो फंक्शन ज़रा स्मूथ हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक फंक्शन ऐसे है, लॉग के बाद वो ज़रा तमीज़ से जाएगा ऐसे। सो इंस्टेड ऑफ applying this Taylor series approximation to the function directly based on experience, I apply it to natural logarithm because that is expected to be more smooth than the function itself, और वही लॉजिक में लगा लेता हूँ log of x पे। लेट्स कॉल इट l of x ताकि मुझे log बार बार ना लिखना पड़े। सो l of x, l of mu, ये सारा ठीक है। अब इसमें ये चीज क्या होनी चाहिए, ये वैल्यू हमने एज्यूम किया था कि यहाँ पे पीक है, इस पॉइंट पे मैंने पीक एज्यूम किया था। तो जब पीक मैंने एज्यूम किया था तो पीक पे तो फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए ना, पीक कैलकुलस अगर आपको याद होगा। सो द डेरिवेटिव मस्ट बी जीरो। अब लॉग का जो डेरिवेटिव है, लॉग ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, किसी को याद आ रहा है? आप लगा लेना चेन रूल। सो 1 ओवर एफ ऑफ एक्स और फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स। सो अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है ना किसी जगह पे, तो लॉग का डेरिवेटिव भी जीरो होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में आ गया ना, ये डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो है, क्योंकि एफ ऑफ म्यू तो नॉन जीरो है, देखो। सो यहाँ पे मैं इस डिफरेंशिएशन में x इक्वल टू म्यू लिख दूंगा, यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ म्यू जीरो। सो इसका मतलब ये है कि दिस हैज टू बी जीरो, दिस हैज टू बी जीरो। और इसको मैं सिंप्लीफाई करके, you wouldn't believe, but I have exactly the same form as I had for the standard, not for the standard but for the Gaussian, वो जो बाद में हमने वापस किया था।
सो बाकी सारा कॉस्मेटिक है, अलजबरा है, आप कर लें. सो एक्चुअली I do not expect you to reproduce all the proofs, but at the end it turns out that you have exactly the same PDF. So ये जो Gaussian density है या Gaussian distribution है, ये सिर्फ लार्ज नंबर ऑफ बाइनोमियल या बर्नौली की वजह से नहीं आ रहा. जब भी आपके पास डेटा हो और उस डेटा से आपने म्यू और सिग्मा कैलकुलेट किया हो, बाकी कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग एल्स, अगर आपको बाकी पता हो कि एक्सपोनेंशियल है या बाइनोमियल है, पॉइसन है, फिर तो ठीक है, फिर तो आप उस पे जाएं. लेकिन अगर आपको नहीं पता और आपको सिर्फ मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का पता है, मतलब मैं आपको दो सिनेरियोज दे देता हूँ ना. अगर आपको यू हैव एब्सोल्युटली नो क्लू, इवन आपको मीन और वेरिएंस का भी ना पता हो, आपको इवन मीन और वेरिएंस का भी ना पता हो, सिर्फ जो है ना रेंजेस का पता हो, तो फिर आप जाएंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे. लेकिन अगर मीन और वेरिएंस पता हो और कंटिन्यूस हो, तो वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट टेलर सीरीज गिव्स अस अ हिंट ऑफ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. So this was just to have your confidence कि Gaussian distribution अगर बार बार आ रहा है तो उसकी एक fundamental reason है. Now we move on to the next topic. Actually we are done with Gaussian, and that is with pairs of random variables. Yeah? अभी तक हमने एक random variable के साथ काफ़ी सारी चीज़ें की हैं. Hypergeometric के केस में अगर आपको याद आ रहा हो तो उसमें हमने even we dealt with pairs of random variables as well, but we did not use specifically the word joint distribution. I think we used this joint distribution, but we did not take it too far. हमें पता है कि joint distribution, joint probability क्या होती है. So we take this a bit more serious now. Let's say to set the stage, I have two variables. Let's say x and y. You can have three variables as well, but it makes this discussion easier to follow. You have two random variables, call them x and y, and let's say they have been defined on the same probability space, which means that the underlying sample space is the same, the underlying sigma field is the same, and the underlying probability p measure is the same. और आपको ये भी पता है कि इसका मुझे PDF भी पता है दोनों का, और इसका मुझे CDF भी पता है. तो CDF भी पता चल गया, PDF भी पता चल गया. अब आप आगे क्या पूछ सकते हैं? So what do you mean by, जिस तरह ये आपको याद होगा कि हमने एक P हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी मेजर, और एक होता है जब X रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन कर लेते हैं तो उसका अपना मेजर होता है PX. इसी तरह Y का अपना होगा PY. तो इसी तरह वी कैन आस्क अबाउट ए जॉइंट मेजर कि X और Y दोनों का क्या है. तो आपको याद है कि हम जब PX की बात कर रहे थे, probability measure of X, or we applied it to any B Borel set. So what we meant by this was the probability that the random variable X belongs to that B. Same goes for Y. लेकिन टू डायमेंशनल में जो Borel set B है वो 2D में होगा. So 2D में you will have a plane. Yeah, 2D plane. Let's call this R squared. Yeah, so one real line, another real line, R squared mean that the 2D plane. इस 2D plane में कहीं पे भी कोई सेट आप बना ले तो आपका Borel set B हो जाएगा. Yeah, so PXY of B is like that pair taking value inside B. So XY की जो values है वो यहाँ पे कहीं पे आ रही है. हाँ? और अगर आप XY को as a pair consider करें तो उसका inverse भी आप ले सकते हैं. So that's what we mean by the measure. ठीक है. So once we have the measure, we can now define joint CDF. आपको पता है CDF सिंगल वेरिएबल में क्या था? Probability that X belongs to X is smaller than or equal to a fixed number. तो अब आपके पास ये pair of variable values आ जाएंगे, ये pair of variables आ जाएंगे. So यहाँ पे X की जगह मैं X comma y लिख देता हूँ, यहाँ पे X की जगह X comma y लिख देता हूँ, और ये फिर replicate हो जाएगा. This one is not exceeding that, this one is not exceeding that. तो बिल्कुल उसी को naturally आपने extend किया है, और ये आपके पास चूंकि joint measure है तो basically आप ये कर रहे हैं. ये अगर मैं इसको विजुअलाइज करना चाहता हूँ, बेसिकली मेरे पास ये है कि लेट्स से मेरे पास एक पॉइंट है XY. सो व्हाट आई एम डूइंग इज दिस, लेट मी यूज डिफरेंट कलर. व्हाट आई एम डूइंग इज
this region, yeah, to the left of x and below y. That is what we mean by the CDF. और उसकी probability calculate करें उसके बाद. Now if you want to define the joint PDF density, remember this definition is for both discrete and continuous, क्योंकि ये दोनों के लिए है. अब joint PDF भी हम ऐसे define करेंगे कि उसमें continuous भी आ जाए और उसमें discrete भी आ जाए. तो अब आपसे अगर मैं पूछ लूं कि discrete अगर हो, x भी discrete है और y भी discrete है, तो आपका joint density आप कैसे define करेंगे? You will definitely define it in this way, because this is how we defined the PDF for a single variable. हम कैसे define किया था? The probability that the variable takes a specific value. उसी वैल्यू पे PDF है. तो अब हम कॉमा लगा लेंगे, कॉमा का मतलब इंटरसेक्शन हो जाएगा. लेकिन मसला ये है कि हर दफा डिस्क्रीट तो नहीं होगा ना, कंटिन्यूस भी तो हो सकता है. तो अगर डिस्क्रीट है तो हमारे पास डेफिनेशन ये हो जाएगा डेंसिटी का. लेट्स से x भी कंटिन्यूस है और y भी कंटिन्यूस है, दे आर बोथ कंटिन्यूस. फिर क्या होगा? वहां से आप इंस्पिरेशन ड्रॉ करें. कंटिन्यूस की केस में PDF क्या था? इट वाज सिंपली a derivative of CDF. Yeah? तो अब चूंकि दो वेरिएबल्स है, so you will have partial derivative and you have to differentiate it with x as well as with y, and remember it was a left hand derivative, so it will be a double partial derivative of the density. आपने MV calculus में पढ़ा होगा, double partial derivative with respect to x as well as with respect to y, क्योंकि joint density है. लेकिन ये दो केसेस तो आसान है समझना, और ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूं कि ये या एब्सोल्यूट या डिस्क्रीट होगा या वो होगा कंटिन्यूस होगा. और अगर इसमें दोनों है तो जहां जहां पे डिस्क्रीट नेचर है तो ये दोनों मतलब इट्स वेरी इजी टू ऐड, दे विल नॉट मिक्स अप. अब ये भी हो सकता है कि n में से एक वेरिएबल कंटिन्यूस हो और दूसरा डिस्क्रीट हो, इंटरेस्टिंगली ना. तो फिर आप क्या करेंगे? आप वही डिफरेंशिएटर अप्लाई करेंगे. इफ y इज डिस्क्रीट तो आप उसको ना छेड़ें, वो डेफिनेशन उधर से पिक कर लें. और चूंकि x इज कंटिन्यूस, सो आप वो डिफरेंशिएशन वाला एलिमेंट x पे अप्लाई कर दे, सो इट विल बी अ पार्शियल डेरिवेटिव. लेकिन ये PDF नहीं बन जाएगा. यहां तो आपने CDF का डेरिवेटिव लिया था ना, यहाँ पे ये चूंकि आपने y इज इक्वल टू y किया है, अगर ये लेस देन और इक्वल टू होता तो आप कह सकते थे कि आप CDF को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बट बिकॉज इट इज इक्वल टू y, जिस तरह ये इक्वल टू y को आपने CDF नहीं कहा था ना, ये डायरेक्टली PDF था. अब आप इसको ऐसे ही लिख दें, P of x लेस देन और इक्वल टू x, y इक्वल टू, आप इसको कोई नाम नहीं दे सकते, इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी. क्योंकि ये चेंज हुआ है ना, जब ये चेंज हुआ है कंडीशन तो ये CDF नहीं रहा. लेकिन आप डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना. सो आई डिफरेंशिएट दैट प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू x लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो फिर मुझे वो दैट विल बी माय जॉइंट PDF. और अगर उल्टा है कि x डिस्क्रीट है और y कंटिन्यूस है, तो फिर मैं x वाली डेफिनेशन को नहीं छोड़ूंगा, वो इधर से पिक करूंगा और विद रिस्पेक्ट टू y मैं डिफरेंशिएट करूंगा. सो यू सी आई हैव कवर्ड ऑल द 4 केसेस. एक्चुअल प्रॉब्लम में इन चारों में से एक ही आएगा, लेकिन आपको सिर्फ मैं कंप्लीशन के लिए डेफिनेशन दे रहा हूं कि द फर्स्ट टर्म इज, ये मैंने लिखा भी है, द फर्स्ट टर्म represents the case when both random variables are discrete. That is what we mean by joint PDF. The last term is when both are continuous. ये भी आपको पता चल गया है. And the two terms in the middle represent the case when one random variable is continuous and the other is discrete. तो मेरे ख्याल में अगर आपको ये रीजनिंग समझ आ गई है तो you do not have to memorize this. You can easily work this out yourself. उसी on the spot आप decide कर सकते हैं कि PDF की definition क्या होना चाहिए. Should it be without any derivatives? Should it be 2 derivatives partial? Should it be 1 derivative? And once you have the joint PDF, you can calculate any probabilities. Although I'm using this notation, but what actually it means is that for discrete case, yes. Sir, my question is कि जब आपके पास कहा ना आपने कि एक discrete एक continuous है, so y is equal to y. जब आपके पास CDF के definition में तो discrete और continuous दोनों होते हैं ना? नहीं, लेकिन वहां पे हम वहां पे डिफरेंशिएट नहीं करते ना, इसलिए मसला नहीं होता.
यहाँ पे आपने देखो ना, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तो मसला ही कोई नहीं है ना। यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं कि आप पीडीएफ को सीडीएफ से पीडीएफ कैसे वो करते हैं, जस्ट रिप्लेस दिस विद इक्वल साइन। मसला यहाँ पे आता है इधर, बल्कि सिंगल में क्या है ना, सिंगल में आपके पास, सिंगल में आप डेंसिटी को कंटिन्यूस के केस में कैसे डिफाइन करते हैं, यू डिफरेंशिएट द सीडीएफ, या अब सीडीएफ में अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे प्रोबेबिलिटी से, आप क्या लिखेंगे, आप x इक्वल टू एक्स तो नहीं लिखेंगे ना, आप लेस देन और इक्वल टू करेंगे जी। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि ये केस यहाँ पे तो आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल डेरिवेटिव है, तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं डबल डेरिवेटिव, तो मैं, और अब मैं एफ सीडीएफ को रिप्लेस करूं तो ये क्या हो जाएगा, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे चूंकि वो डिस्क्रीट है, तो आपने देखो ना, इंटरेस्टिंग केस ये बन रहा है कि ये y इज इक्वल टू वाई वाला कैरेक्टर आपने इधर से उठा लिया, और डिफरेंशिएशन वाला कैरेक्टर आपने इधर से उठा लिया, ये मिक्स ऑफ द टू, ये खिचड़ी पक गई ना जी सर। तो जब खिचड़ी पक गई है तो वो लेस देन और इक्वल टू यहां तो आएगा, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां नहीं आएगा, यहां पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ये अक्सर अनफॉर्चुनेटली बुक्स में ये देते नहीं है, लेकिन आई विल शो यू दैट देयर आर प्रॉब्लम्स वेयर यू मस्ट यूज वन ऑफ दीज टू, ये वहां पे वैलिड नहीं होता। अभी आगे एक एग्जांपल आएगा जिसमें हमारे पास एक केस होगा, और फिर आपको पता चल जाएगा कि वी विल नीदर बी एबल टू यूज दिस नॉर दिस, वी हैव टू यूज वन ऑफ दीज, ठीक है। तो आगे जाएंगे। ओके, सो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि यू डोंट हैव टू टेक दिस टू सीरियस, is related to some previous notation, but if I want to calculate the probability of any Borel set from the density, तो अगर वो discrete है तो I will have to sum, double sum आ जाएगा इसमें, ठीक है, and double sum has to be x and y should be such that they belong to B, तो summation restricted to B हो जाएगा, it's not rocket science। और अगर ये दोनों continuous है तो ये क्या हो जाएगा, double integral, या और डबल इंटीग्रल में ये जो इंटीग्रेशन है, ये x और y ऐसे होने चाहिए दोनों लिमिट्स कि वो दोनों किस में आ जाएं, b में आ जाए, ये भी आसान है। अब आप खुद बताएं, अगर इसमें से एक कंटिन्यूस है दूसरा डिस्क्रीट है तो आप क्या करेंगे, इनमें से एक सम होगा और दूसरा क्या होगा, बताएं। एक सम हो जाएगा इन दोनों में से और दूसरा इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है, और रीजन ऑफ इंटीग्रेशन और समेशन कंबाइंड बी हो जाएगा। तो ये इट्स वेरी इजी, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम बेस खुद ही आ जाएगी। अच्छा, अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमने हाइपरज्योमेट्रिक के केस में किया था। हाउ डू आई स्टार्ट फ्रॉम द जॉइंट CDF एंड हाउ डू आई गेट माई मार्जिनल CDF। अब देखो ना, यहाँ पे मैं आई केयर अबाउट बोथ x एंड y, यहाँ पे आई केयर अबाउट x ओनली, तो व्हेन आई डोंट केयर अबाउट y, I must take all values of y into account from minus infinity to plus infinity, क्योंकि मैं उसको ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज पे अप्लाई करूंगा, ठीक है। सो उसका आसान हल ये है कि क्योंकि मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, बाय डेफिनेशन CDF क्या है, x लेस देन और इक्वल टू x, y लेस देन और इक्वल टू y। व्हेन आई डोंट केयर अबाउट y, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस y की जगह यहाँ पे होना चाहिए, और चूंकि इन्फिनिटी है तो इक्वल टू साइन नहीं चल सकता, तो दैट इज व्हाट यू डू देयर, या ये मैं माइनस इसलिए लग रहा हूँ कि आप ये बेसिकली यू आर अप्रोचिंग इन्फिनिटी फ्रॉम बिलो, फ्रॉम लेफ्ट, और that is how you get your CDF, the marginal CDF, and when you don't care about x, you just replace x by that infinity and you get your marginal CDF of y। और अगर आपको marginal PDF चाहिए तो अगेन, अगर if you have a वो तो आसान है उसका, that you have to
if it is discrete, you just sum over all values of y, क्योंकि y does not matter, only x will be left. और अगर continuous है तो you just integrate over all values of y. जो चीज आपको आंसर में नहीं चाहिए, you take into account, ये law of total probability है ना, ये हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। ये ऐसा ही है ना कि मेरे पास probability of a intersection b है और ये b1 b2 है, तो b1 bi है फॉर एग्जांपल, सो b1 b2 एंड सो ऑन। सो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूँ with respect to i, so what will I get? I will get probability of a, क्योंकि वो i को मैंने irrelevant, b को मैंने irrelevant कर दिया, I take into account all the values, yeah. So and same goes for the marginal PDF of y. और यहाँ पे एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको याद हो, हमने वहाँ पे एक फार्मूला डिराइव किया था कि अगर if I have any CDF and if I, let's say, two value b and a, so if I have fx of b minus fx of a, so it turned out to be probability that x is between a and b. मेरे ख्याल में n में एक जो है ना ये इक्वल था और दूसरा नहीं था, इस तरह का। So we can come up with some formulas like that as well, yeah. कि we define these two, let's say you subtract from this CDF, अब यहाँ पे एक चीज नोट करें, अच्छा ये लगता मुश्किल है लेकिन बहुत आसान है ये। यहाँ पे मैंने y को नहीं छेड़ा, y इधर ही है, y1 मैंने क्या छेड़ा है, मैंने सिर्फ x की वैल्यू चेंज की है। तो ये अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो देखो ना, आपने x1 x2 का तो आ गया है कि x is between x1 and x2, x के ऊपर आपने इंटरवल लागू कर दिया कि the value x lies between this interval, yeah. लेकिन y को आपने -∞ to y1 कर दिया क्योंकि उसको आपने छेड़ा नहीं है। इसी तरह अगर आप ये लिख दें कि x को ना छेड़ें और ये y को चेंज कर दे, y2 y1 और x1 को रहने दें, तो यहाँ पे ये हो जाता है कि y के लिए आपने इंटरवल y एक्सिस पे डिफाइन कर दिया, you want y to be between y1 and y2 and you want x1 to be just like in the one dimensional case, yeah. तो इनको कंबाइन करके you can use some geometry and at the end you can have some nice formula, yeah? इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ मेरे ख्याल में, अगर if you don't want to go into math, let me explain it in an easy way. ये मैंने I don't know explain नहीं, शायद वो ग्राफ मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं कह सकता, इसको मैं ऐसे करूँगा कि you have, let's say, this 2D plane and let's say you want to go from one point, let's say this is one point and this is another point, yeah? तो इस रीजन को आप कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स से ये जो वैल्यू है ये है x1 y1, ठीक है, इसको गौर से देखें, और ये वैल्यू क्या है x2 y2। तो मैं ये कह सकता हूं कि it is the probability that x is between x1 and x2, yeah, and y is between y1 and y2। और इसमें वही आपको याद है, उसमें ये कर लेता हूं कि इसमें एक को निकाल देता हूं मैं ना, ठीक है। सो ये इनइक्वालिटी इस साइड पे है, इस पे नहीं है, इस पे नहीं है, ये सिर्फ लेस देन है और ये लेस देन इक्वल है। इससे फार्मूला आसान बनता है ना, क्योंकि आप बेसिकली इस साइड को निकाल रहे हैं, इस साइड को आप निकालना चाहते हैं तो वो उधर निकलना चाहिए। सो इसको आप कैसे देखेंगे ना, इसका एक तरीका ये है कि आप कह दें कि मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो अगर मैं ये पूरा, मैं इसको बाद में रिमूव कर दूंगा ना ऐसे, ये क्या हो जाएगा CDF at x2 y2, so that will give me CDF at, रिमेंबर मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई नीड दिस। सो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा CDF at, CDF का मतलब ये है कि टू द लेफ्ट ऑफ x2 बिलो x2 बिलो y2। अब ये तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, तो इस प्रोबेबिलिटी से मैं पहले क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये प्रोबेबिलिटी में इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो ये क्या है, ये CDF at x1 y1 है ना, तो ये इधर आ गया CDF at, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ।
लेकिन अब भी बात नहीं बनी ना, क्योंकि अब ये भी तो सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये जो एक्स्ट्रा है। तो अब ये दोनों अगर आप गौर कर लें, बेसिकली ये है, इनमें अब अगर आप चेक करें, आप अगर सिर्फ इसकी बात करेंगे तो आप y1 को तो चेंज कर रहे हैं, y1 और y2, यहाँ पे y1 है और यहाँ पे क्या है, y2 है, लेकिन x को आप नहीं चेंज कर रहे हैं, x को आप x1 ही रहने दे रहे हैं। सो इट इज x1 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे आपने x को तो चेंज कर दिया, इस जगह पे x1 है और इस जगह पे क्या है, x2 है। y को आप चेंज नहीं करें, y सीधा आ रहा है माइनस इन्फिनिटी। So you can actually derive this yourself. You don't. I think you have enough mathematical skills and geometrical skills to derive this formula. And don't worry, I can provide this formula. If I want any question, if I want you to solve a problem, I can provide this formula to you. Don't worry. Okay. अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, क्योंकि अगला टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। स्पेशली जॉइंट में क्या मसला आ सकता है आपको? अच्छा, आज तो कोई और स्टूडेंट आया नहीं है इंटरेस्टिंगली। सो अब कंडीशनिंग में हम क्या करेंगे? कंडीशनिंग का मैं पहले आपको आसान वर्जन बता देता हूं। क्या हुआ इसको? ओके, आसान वर्जन क्या है आपके ख्याल में? मेरे पास, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास ये है, तो ये क्या होगा? ये मुझे क्या देगा? y देगा कि नहीं? ठीक है, अब मैं इसको कंडीशनल बना देता हूं। लेट्स से इट इज कंडीशनल on one value of x, so x equals small x. So this is what we mean by conditional CDF. ये क्या बन जाएगा? कंडीशनल CDF। अब ये चीज मैं यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करूँ? कोई तरीका तो होना चाहिए ना। तो अब मैं ये पूरा बार बार नहीं लिख सकता, तो यहाँ पे मैं जिस तरह मैंने यहाँ पे y लिखा है ना, तो मैं बार लगा के यहाँ पे x लिख दूंगा। तो बार x का मतलब ये है, और यहाँ पे आई हैव टू रिमेंबर कि ये किसकी वैल्यू है। जिस तरह ये y अलोन इनफ नहीं है, यहाँ पे अपर केस y मुझे रिमाइंड कर रहा है कि इसकी वैल्यू है, ये नोटेशन है ना। इसी तरह ये x भी, तो यहाँ पे एक बार मैं इधर लगाऊंगा और यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए, y गिवन x और यहाँ पे y गिवन x। दिस इज व्हाट वी मीन बाय द CDF। अब आप कह रहे हैं कि ये इतना आसान है और ये इतना मुश्किल यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है? ठीक है, तो ये जो मैंने बताया है ये तब होगा जब ये x, आई डोंट केयर कि y डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना ये CDF की, ये कंटिन्यूस के लिए भी है, डिस्क्रीट के लिए भी है। लेकिन ये जो फॉर्मूला है कंडीशनल, आप क्या थे? कंडीशनल आप क्या करते थे? इफ यू वांट टू से a गिवन b, तो आप क्या करते थे? p of a कॉमा b या इंटरसेक्शन b डिवाइड बाय p of b। अब ये p of b अगर जीरो हो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, डिवाइड बाय जीरो में आप क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे मसला ये है कि ये आपका b ये हो जाएगा, x is equal to x। So if x is continuous, so p of x is equal to x will be, I hope you remember कि continuous के लिए ये क्या हो जाएगा, ये probability, this will be 0. So the conditional probability will not be defined. So this definition cannot help you, ठीक है? So you have to change this definition. अब आपको हैरानी होगी कि although that definition has a problem, but we still can define our conditional CDF. ये फिर भी definable है। कैसे? मैं एक काम कर लेता हूँ। I start with the same attempt, yeah. So I go with that again because ultimately I am interested in the CDF of y. But because I can't write x is equal to x here, that will give me zero probability.
I can write something which is very close to x. Yeah? So I'm just around x, x के आसपास हूं मैं. तो उसका आसान तरीका क्या है कि x is, इसका मैं पहले भी करता रहा हूं, हम एक फॉर्म यूज करते हैं लेस देन और इक्वल टू x और greater than x minus some small number. Let's call that small number h. यहां पे मैंने ये लिखा है, याद आ रहा है आपको? ये एग्जैक्टली वही चीज है. And then I allow h to approach 0. अब आप कहेंगे कि ये तो फिर भी 0 हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये उससे पहले पहले आपको लिमिट मिल जाएगा. इसकी वजह ये है, लिमिट कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि बेसिकली ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है. तो कंडीशनल में क्या होगा, डिनोमिनेटर में तो ये आ जाएगा ये, so this denominator will get smaller and smaller and smaller. लेकिन न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर में इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा. तो जब इंटरसेक्शन में एक इवेंट, when one event shrinks to a point, तो intersection will also shrink to a point. ये तो नहीं है कि ये shrink to a point हो जाएगा और ये बड़ा रहेगा. So basically you will have a thing, a quantity which approaches 0 by 0. और आपको पता है कि 0 by 0 पे जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो 0 by 0 से पहले पहले आपको वैल्यू मिल जाती है. ये बात समझ आ गई? So इसका मतलब ये है कि we can define our conditional CDF in this way. क्योंकि इस लिमिट में वो पहला वाला जो सिंपल केस है वो वैसे ही आ गया ना. मतलब अगर ये हम इसको लिमिट की जगह h इज इक्वल टू 0 भी कर दें तो वो x इज इक्वल टू x आ जाएगा, तो वो तो वैसे ही है. तो दिस डेफिनेशन इज एक्चुअली मोर जनरल. दिस इंक्लूड्स द डिस्क्रीट एज वेल एज द कंटीन्यूअस. सो इट्स बेटर टू रिमेंबर इट दिस वे. और ये बहुत जरूरी है कि ये जो x है ये आपके सपोर्ट में हो, वरना इस डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं है, वो इंटरसेक्शन होगा नहीं फिर सर से. And similarly, if you want to differentiate this with respect to x, you get your conditional PDF. Conditional PDF में आप इनको डिफरेंशिएट करें तो इसमें दो केसेस आएंगे. आपको पता है कि एक केस में जब दोनों कंटिन्यूस हो तो ये आ जाएगा, या जब y कंटिन्यूस हो तो आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और अगर y कंटिन्यूस ना हो तो आप y इज इक्वल टू y करेंगे. ये वही दो केसेस पुराने हैं. लिमिट अपनी जगह पर है ना, ये लिमिट चेंज नहीं हुआ. ये सिर्फ यहाँ पे ये दो केसेस सिर्फ y की वजह से आ रहे हैं. इफ y इज डिस्क्रीट तो ये केस हो गया, इफ y इज कंटिन्यूस तो ये केस हो गया. ये दोनों केसेस उसकी वजह से आ रहे हैं. एंड यू कैन ऑल्सो एक्चुअली, आई डोंट वांट टू प्रूव दिस बट यू कैन शो इट योरसेल्फ that this complicated expression ultimately can be broken down to this simple expression. Or it's easy to remember, yeah? The conditional PDF is simply the joint PDF divided by the marginal PDF. So let me just write it down. Conditional PDF. ये फार्मूला उधर नहीं है CDF के लिए. CDF का conditional फार्मूला इतना आसान नहीं है, वो तो आपको समझना पड़ता है. Conditional CDF requires the limit definition. But conditional PDF is very easy for both discrete and continuous. It is very easy. Let me just write it in words. Denominator में आप लिखेंगे marginal PDF. क्या? और आपको पता है कि marginal PDF उसी का होगा जिस with respect to which you are conditioning it. तो जो conditioning variable है उसी का PDF आएगा नीचे, और ऊपर क्या आएगा? Joint PDF. So I would like you to remember this. और इसकी ब्यूटी ये है कि आपको अगर ये याद है तो इसको इंटीग्रेट करके आपको वो भी याद आ जाएगा. इवन आपको ये भूल भी गया कंडीशनल CDF, दिस इज द की टू रिमेंबर. सो रिमेंबर इट दिस वे. कंडीशनल PDF is the joint PDF divided by the marginal PDF. You remember this thing and I don't think it's rocket science. Everything else just follows from it. कुछ बुक्स में ये चक होती नहीं है जो मैंने स्टार्ट में की है. They just give this as a definition. लेकिन अगर मैं इसको वैसे आउट ऑफ द ब्लू दे देता तो आप परेशान हो जाते कि ये डेफिनेशन कहाँ से आ गया है ना. It actually, that is a natural way of defining it. First you define this conditional CDF, then differentiate, and then you should get your conditional PDF. अब ये तो हो गई conditioning on variables. Basically what I have done is that you are conditioning one variable with another variable. इसलिए तो हम जब हम PDF लिखते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिखते हैं,
यहाँ पे बार लिखते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं x। सो बेसिकली यू आर कंडीशनिंग ऑन अनदर वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे वो उसकी वैल्यू आ जाती है। अच्छा, अब आप समझ रहे होंगे ना कि मैं जब यहाँ पे y लिख रहा हूँ और यहाँ पे x लिख रहा हूँ तो इसकी ज़रूरत क्या है। लेट्स से मैं ये नहीं लिखता तो आप कहते हैं कि यार मैं तो लिख रहा हूँ, ये तो x है ना, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर इस x की जगह 3 लिख देता हूँ और इस y की जगह 2 लिख देता हूँ, तो मुझे कैसे पता होगा कि कंडीशनिंग, लेट्स से उस प्रॉब्लम में z भी है, x भी है और z भी है, तो आपको क्या पता कि ये 3z की वैल्यू है या x की y की वैल्यू है या x की वैल्यू है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, क्योंकि ये वैल्यूज तो आप प्लग करेंगे, ये प्लग नहीं करेंगे, यहाँ पे नाम अपनी रहेंगे अपनी जगह पे। Yeah. So when I say 2 given 3, I know this 3 is a value of x and not of some other variable. So that is not redundant, it is a requirement. अच्छा, कभी कभी हमें कंडीशनिंग ऑन इवेंट्स भी करनी पड़ती है, ठीक है। सो आई वांट टू do something like that. Let me just write this down. I have probability x less than or equal to x. Of course, this is my PDF, sorry, my CDF, but I just want to condition it on some event A. ठीक है, तो this is basically I can write f of x given A, आसानी से। और अगर आप चाहें तो ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि basically it is as if, ये तो कंडीशनल CDF है ना, you can write it as an unconditional CDF by restricting x to a। तो अगर आप x के ऊपर ये नोटेशन लगा दें और यहाँ पे नीचे a लिख दें, ये तो restricting x to a is the same as taking this conditional probability. It's one and the same thing. It's up to you. That's just another way of looking at it. And just remember, this makes only sense when makes sense only when p of a is non-zero, क्योंकि कंडीशनिंग में जब आप प्रोबेबिलिटी जीरो कर लेते हैं, अगर यहाँ पे तो आप लिमिट भी नहीं ले सकते ना, यहाँ पे आप वो लिमिट से मसला इसलिए हल नहीं हो रहा कि a तो फिक्स्ड है ना। अब ये तो नहीं कह सकते कि लिमिट a अप्रोचिंग 5, a को तो आप चेंज नहीं कर सकते। वहाँ पे x था, यू वर इंटरेस्टेड इन x इक्वल टू x, तो आपने लिमिट ले लिया। यहाँ पे a को तो आपने नहीं छेड़ना, a को a ही रहना है, तो a में जितने एलिमेंट्स है वो नहीं चेंज करने आपने। So it is a requirement that a must not have a zero probability. And again, if you differentiate this, you will have those two cases कि अब ये यहाँ पे x पर डिपेंड कर रहा है कि अगर x डिस्क्रीट है तो ये केस बन जाएगा, कंटिन्यूस है तो आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अच्छा, इसका एडवांटेज ये है, ये कंडीशनिंग ऑन इवेंट्स का, कि अगर आपको एक रैंडम वेरिएबल है उसकी CDF कैलकुलेशन में आपको मुश्किलात आ रहे हैं, इट्स डिफिकल्ट कैलकुलेशन, but you somehow come to know that the whole sample space can be partitioned into events a1, a2 and so on, let's say an। तो आप, हो सकता है आपके लिए ये मुश्किल हो, लेकिन हो सकता है आपके लिए ये जो कंडीशनल CDF है, कंडीशनल ऑन वन ऑफ दीज, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्टिंगली आपने ये नहीं पूछा कि ये x यहाँ पे हमें क्यों ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं ये लिख देता हूँ ना f x और यहाँ पे x गिवन a, यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि तो इवेंट है ना, इवेंट के लिए किसी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, इट विल जस्ट बी अ सेट। सो सेट होता है, सेट किसी चीज़ की वैल्यू नहीं होती, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। सो कुछ बुक्स में यहाँ पे भी a लिखा होता है, कोई ज़रूरत नहीं है, आप या a लिखेंगे यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, you already have done that. So basically CDF conditional on A1, CDF conditional on A2 and so on, and then you just take the law of total probability, yeah, given A1 P of A1, given A2 P of A2, add all of them and you get your unconditional CDF. So basically whenever you can partition the sample space into a set of events, that will help you. This we will use this idea in problem solving. Remember, problem solving में ये चीज़ बड़ी help करेगी हमें। ये जो ऊपर वाले फार्मूले हैं ये इतने यूजफुल नहीं है जितना ये टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट है।
और इसका मतलब ये है कि वी कैन नाउ ऑल्सो राइट और बेस रूल। आपको याद है बेस रूल क्या था? बेस रूल ये था P ऑफ A गिवन B, और लेट्स से आपको P ऑफ B गिवन A पता है और आप उससे P ऑफ A गिवन B कैलकुलेट करते हैं, तो इट इज़ द सेम एज P ऑफ A टाइम्स P ऑफ B गिवन A, और यहाँ पे P ऑफ B हो जाएगा। तो वी नीड ए वर्जन ऑफ दिस फॉर रैंडम वेरिएबल्स। तो उसमें भी आसान है कि if I now want to know the probability of an event given that some variable has taken a value, तो मैं आसानी के लिए ये डिस्क्रीट एज्यूम कर लेता हूँ। डिस्क्रीट के लिए कोई मसला नहीं है, ए तो सेट है, ए तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का चक्कर नहीं है डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का। तो आप क्या करेंगे? यू थिंक ऑफ दिस एज बी, तो आप क्या करेंगे? P of that b which is P x is equal to x, x is equal to x, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? नहीं, ये मैंने उल्टा लिखा है, ये P of x is equal to x डिनोमिनेटर में आएगा कंडीशनिंग इवेंट का, ये इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा P of a और x is equal to x given a, ये आ जाएगा। अब आप गौर करें ये क्या है? ये बेसिकली कंडीशनल PDF है a का, x का, ये x का कंडीशनल PDF है, नजर आ रहा है आपको? ठीक है। और ये क्या है? ये मार्जिनल PDF है x का, ये भी आपको आ रहा, ठीक है। तो आसान है ये बेसिकली फार्मूला, अगर आपको ये याद है तो। लेकिन हमें वी हैव टू एस्टेब्लिश कि ये कंटिन्यूस के लिए भी होगा। कंटिन्यूस के लिए आपको पता है ये आपको चेंज करना पड़ेगा, इंटरवल फिर लिमिट लगाना पड़ेगा, वो लगा लें, आपको घुमा फिरा के ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है ना। सो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू बोथ कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट। और चूंकि हमें नहीं पता होगा कि x कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है, तो ये x इज इक्वल टू x लिखना खतरनाक होगा, क्योंकि इससे हमेशा मतलब गलत लिया जाएगा। तो इसके ऊपर मैं प्लस माइनस लगा रहा हूँ so that I don't have to write this again and again. So this is just a shorthand for writing this and h approaching 0, ये बार बार लिखना आसान नहीं है। So whenever I write x is equal to x plus minus का मतलब वही है कि ये लिमिट की बात हो रही है। Actually now we are in a position to attack a problem, yeah? अब आपको समझ आ जाएगी कि कंडीशनल PDF, कंडीशनल CDF, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या बेस रूल ये क्यों इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम। आपके पास मेमोरी चिप्स हैं, किसी वेंडर से आपने खरीदे हैं कंपनी से, और इसमें डिफेक्टिव चिप्स आ रहे हैं, और इस कंपनी का रिकॉर्ड आपको पता चल गया समहाउ पिछला कि in the manufacturing of memory chips by a company, what they do is that they on the average, this यहाँ पे understood है कि यहाँ पे on average बात हो रही है statistically, on average the company produces one defective chip for every 5 good chips। इसको मैं probability में कैसे translate करूँगा, बताएं मुझे। One defective chip for every 5 good chips, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव की। अगर मैं डी डिफेक्टिव, लेट्स से डी रिप्रेजेंट द डिफेक्टिव, द इवेंट ऑफ डिफेक्टिव, मैं रैंडमली एक चिप को चेक करता हूँ वो चिप या डिफेक्टिव होगा या नॉन डिफेक्टिव होगा। सो इस सेंटेंस से प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव क्या होगी, बताएं मुझे। ऊपर तो 1 आ जाएगा ना, 1/5 नहीं नीचे क्या 1/5 होगा? जी सर। और करें इस पे क्या लिखा हुआ है, 1 chip for every 5 good chips, नॉट टोटल चिप्स नहीं कहा, गुड चिप्स कहा। तो टोटल कितने होंगे? बताएं। 6 सर। हाँ, तो ये 1/6 हो जाएगा। समझ आ गई? ये ऐसा ही है कि आप किसी को कह दें कि आई विन अ मैच फॉर एवरी 5 लॉस्ट मैचेस, तो आप 5 जब हारते हैं तो आप 1 जीतते हैं, तो आप वो आपकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई ना फिर।
सो ये आप जहन में रखें। नाउ ऑन एवरेज a defective chip lasts 2 months before it fails। ये जहन में रखें, ये डिफेक्टिव चिप। अब आपके पास दो टाइप के चिप्स हैं, एक डिफेक्टिव है और एक नॉन डिफेक्टिव है। तो लेट्स से इसको मैं डी लिख देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। दो पॉसिबिलिटीज है। तो डिफेक्टिव चिप्स जो है उनकी क्या प्रॉपर्टी बताई गई है कि दे लास्ट 2 मंथ्स। तो आप बताएं ये किस क्या प्रॉब्लम डिस्कस हो रही है। ये मैंने पहले भी बताया था एक लेक्चर में, लाइफ टाइम ना, कि ये कितना चलेगा, ये इक्विपमेंट कितना चलेगा। तो ये लाइफ टाइम की बात हो रही है। तो लाइफ टाइम, अगर मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल है x, मैं इसको क्या लिखता हूं, इफ x रिप्रेजेंट्स द लाइफ टाइम, मैंने नीचे लिखा भी है। तो मुझे ये बताएं कि जो 2 मंथ्स है ये क्या है उसकी, ये उसके x के लिए क्या है। ऑन एवरेज, इसका मतलब ये है कि उसकी एवरेज वैल्यू है, ये उसकी मीन वैल्यू है, ये उसकी मीन वैल्यू है। और मैं अगर मैं एज्यूम करता हूं कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस लाइफ टाइम विल बी अंडरस्टूड इन मंथ, सो दैट मुझे बार बार वो मंथ लिखना ना पड़े, तो म्यू इज इक्वल टू, ये बात समझ आ गई। अब आगे क्या है, हाँ अब आगे क्या लिखा है, एंड ए गुड चिप लास्ट्स 10 मंथ्स। अब आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि वो गुड चिप के लिए भी आप एक्स लिख दें। अब मैं सिर्फ जरा लेजी मोड में लिख देता हूँ कि लेट्स से इसी एक्स को मैं लिख देता हूँ लाइफ टाइम, और ये लाइफ टाइम ऑफ ए डिफेक्ट नॉन डिफेक्टिव, डी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि गुड चिप है, तो उसका मीन क्या है, 10 है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इसके लिए भी मैं x यूज करूं और ये भी मैं इसको भी म्यू x लिख दूं, ये गड़बड़ हो रही है ना। तो बेसिकली यहां पे आप खुद बताएं कि ऊपर हमने क्या पढ़ा है, कंडीशनल, ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये यूज कर सकते, ये कंडीशनल किस पे है, ये इस पे है कि चिप गुड है या बैड है। अभी ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हमने दो टाइप की कंडीशनिंग पढ़ ली ना। एक तो हमने स्टार्ट में कंडीशनिंग पढ़ ली है, ये वाली कि वन वेरिएबल कंडीशनल ऑन अनदर वेरिएबल, ये वाला केस यहाँ पे नजर नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव वेरिएबल नहीं है। हम चाहें तो वेरिएबल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इवेंट्स है, यहाँ पे क्या है, इवेंट्स है। इवेंट्स वाली भी हमने देख ली ना, कंडीशनिंग ऑन इवेंट्स के पीडीएफ सीडीएफ और पीडीएफ को हमने किसी इवेंट पे भी तो कर दिया ना, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स नॉट एक्सीडिंग एक्स गिवन ए, और ये मैंने ये बता दिया। और इसका मैंने इवन अभी थोड़ी देर पहले फार्मूला भी बता दिया कि अगर आप चाहें तो आप इसका इवन बल्कि इवन ये जो है ना, ये मैंने लिखा हुआ है, ये इसका मुझे एंड पे एक फार्मूला भी देना चाहिए था। अगर आप चाहें तो आप इसकी नहीं सॉरी, ये उसी तरह से आएगा। डिस्क्रीट केस में ये होगा, कंटिन्यूस में इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सो ये बेसिकली, अगर मैं इसको अगर पहले क्वेश्चन पढ़ लेके पूछा क्या है, द चिप्स आर विजुअली इनडिस्टिंग्विशेबल। चिप को देख के पता नहीं चलता कि किस कंपनी का है, या गुड है या बैड है, या डिफेक्टिव है नहीं है। आपने परचेज कर लिया, चिप इज परचेज, नाउ अ चिप इज परचेज्ड, यू आर टेस्टिंग इट, दिस इज योर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चिप विल फेल बिफोर 6 मंथ्स ऑफ यूज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो मैं यहाँ पे ये इस चकचक में नहीं पढ़ता, आपको पता है कि वैल्यूज कहाँ से आएंगी। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आई डिफाइन x एज माई रैंडम वेरिएबल which is the lifetime, which is the lifetime in months, ताकि months मुझे बार बार लिखना ना पड़े। तो ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की है, p ऑफ व्हाट बताएं, x। हाउ डू यू ट्रांसलेट द चिप विल फेल बिफोर 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं 6 लिख देता हूँ। ये x ग्रेटर देन 6 है या लेस देन 6 है, बताएं। लेस देन है। इसका मतलब आपको समझ आ रही है कि लाइफ टाइम को कैसे मॉडल करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है ना, ये पहले इसको सेट करें करना क्या है। हम ये बाद में करते हैं, चीजें पहले कर लेते हैं ना।
और ये क्या है? अच्छा, ये शायद मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पूछने की कोशिश की और मैं फिर बाद में शायद इसको कंप्लीट नहीं किया मैंने। हो सकता है ये मैं क्वेश्चन मार्क छोड़ लेता हूँ, अगर मैंने इसको सॉल्व किया हो ठीक है, वरना मैं इसको डिलीट कर दूंगा फिर। ठीक है, हो सकता है किया हो तो बाद में देख लेते हैं। अच्छा, अब आपको ये नोटेशन याद आ रही है कि मैं रैंडम वेरिएबल लिखता था, यहाँ पे मैं ये नोटेशन यूज करता था रिस्ट्रिक्शन, और यहाँ पे मैं एक्सेट लिखता था, याद है आपको? तो यहाँ पे बेसिकली हो ये रहा है कि आपके पास डिफेक्ट डी किस इवेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि चिप डिफेक्टिव है। सो अब ये क्या है, नाउ यू रिस्ट्रिक्ट द रैंडम वेरिएबल एक्स टू डिफेक्टिव चिप्स। ठीक है, तो ये लिखना गलत है कि x इज एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब पता है लाइफ टाइम को हम मॉडल करते हैं एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड में, एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में, इधर नीचे बताएं, यहाँ पे किसकी वैल्यू लिखते हैं एक्सपोनेंशियल में? हम लेमडा की लिखते हैं ना। तो लेमडा की वैल्यू क्या होगी डिफेक्टिव के लिए? आपको याद है उसका एवरेज क्या था, एक्सपोनेंशियल का एवरेज क्या था, मीन? इट वाज 1 ओवर, नहीं सर। इट वाज 1 ओवर लेमडा। अगर आप वो लेक्चर दोबारा देख लेना, एक्सपोनेंशियल में तो लेमडा आ रहा है, ये तो याद है आपको ना। ये लेमडा, इट वाज नॉट द एवरेज वैल्यू, इट वाज द रेट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, रेट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। अब हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है कि इट लास्ट 2 मंथ्स ना। तो आप खुद बताएं, अगर कोई चीज 2 महीने बाद ऑन द एवरेज खराब हो जाती है तो उसका फेलियर रेट क्या हो जाएगा? लेमडा, लेमडा इज द फेलियर रेट, इट विल बी 1/2। ये पहले भी मैंने बताया था, ये प्रोग्रामिंग एग्जांपल में भी बताया था कि प्रोग्रामर मेक्स अ मिस्टेक्स एवरी 10th लाइन या एवरी 10th पेज ना। मतलब अगर आप हर 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 दूसरा मैच हारते हैं तो आपके लूजिंग प्रोबेबिलिटी क्या, वो रेट क्या है, रेट ऑफ लूजिंग 1/2 है ना। तो ये लेमडा इज इक्वल टू 1/2 बेसिकली। तो आप ये कह सकते हैं कि जो x है इट फॉलोज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद दैट पैरामीटर, लेकिन ये गलत होगा, ये तब ठीक होगा जब आप इसको रिस्ट्रिक्ट करें टू दैट d। अब आपको ये नोटेशन समझ आ गई? अच्छा अच्छा, कुछ लोग ये समझते नहीं है और वो पता है क्या लिखते हैं, वो ऐसे लिखेंगे, ये आपने कुछ बुक्स में लिखा होगा, ब्लॉग्स में भी लिखा होगा, देखा होगा, वो ऐसे लिखते हैं इसको x गिवन d, जिस तरह प्रोबेबिलिटी आप लिखते हैं। तो मुझे बताइए ये क्यों गलत है? मोहम्मद आपको याद होगा ये कि इसको मैंने डिस्करेज किया था। सर क्योंकि आपने कहा था कि इट्स अ रिस्ट्रिक्शन, आप इसको एज एन इवेंट हाँ, उस तरह से नहीं डील करना। नहीं, ये इसका मतलब क्या होता है ना, बेसिकली इसका मतलब ये खुद इसका मतलब तभी बनता है जब आप प्रोबेबिलिटी लगाए ना इसकी, ये प्रोबेबिलिटी नोटेशन है ना। जी। तो जब यहाँ पे चूंकि प्रोबेबिलिटी हम लगा नहीं रहे तो इसका मतलब नहीं बनेगा, उसका मतलब बन सकता है फिर भी। तो अब आगे हम जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम उसी पे आएंगे वापस। अच्छा, अब ये तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ना कि जब जब मैं रिस्ट्रिक्शन डी कॉम्प्लीमेंट पे लगा दूंगा तो क्या है 1/10, क्योंकि वो है इट लास्ट 10 मंथ्स। तो देखिए नोटेशन ने कितना मसला आसान कर दिया, प्रॉब्लम को इसने मतलब एक स्टेज पे ला दिया ना। तो लेट एक्स रिप्रेजेंट द लाइफ टाइम, और ये लिखना ना भूलिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, कॉमा इन मंथ्स। इसका क्या फायदा है कि आई डोंट हैव टू राइट दैट म्यू इज इक्वल टू 2 मंथ्स, मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं है बार बार, वो एक ही दफा उसमें मैंने उधर लिख दिया। म्यू इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि वो मंथ्स में ही होगा। ऑफ द परचेज चिप, लेट डी डिनोट द इवेंट दैट द परचेज चिप इज डिफेक्टिव, डी कॉम्प्लीमेंट इज नॉन डिफेक्टिव और गुड चिप, वी कैन देन अज्यूम दिस। ठीक है, और ये अजम्पशन ही है कि जरूरत नहीं कि एक्सपोनेंशियल हो सकता है, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन भी हो, लेकिन हमारे पास इस टाइम पे अजम्पशन ही हम कर सकते हैं। तो अब आप बताएं कि मैं CDF लिख सकता हूं कि नहीं? CDF नॉर्मली क्या होता है उसका, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा, और ये तो मैं इसलिए लगा रहा हूं कि नॉन नेगेटिव के लिए ही होगा ना। P ऑफ D मैंने पहले बता दिया 1/6 और ये क्या हो जाएगा 5/6।
अब नीचे आ जाएं कि हमें क्या चाहिए। क्वेश्चन क्या था? x लेस देन 6। अब चूंकि कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस में आप ये लिख भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, क्योंकि p ऑफ x इज इक्वल टू सिंगल वैल्यू तो वैसे भी जीरो होती है ना प्रोबेबिलिटी कंटिन्यूस में। सो आई कैन रिप्लेस दिस विद लेस देन और इक्वल टू x ताकि मैं CDF लगा लूं। और CDF कंडीशनली, अब आपको ये क्या नजर आ रहा है? मैंने बताया था कि हम प्रॉब्लम में यूज करेंगे। ये हमने क्या यूज किया है? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब या D होगा या D कॉम्प्लीमेंट होगा। जब D होगा तो CDF कंडीशनल ऑन D, जब D कॉम्प्लीमेंट होगा CDF कंडीशनल ऑन D, कंडीशनल ऑन D। इसका अच्छा, अब आप एक काम देख लें कि प्रॉब्लम्स में, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में यू आर मोर लाइकली टू नो द कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। देखे ना, ये नेचुरल है कि एक चिप गुड है और एक चिप जो है ना डिफेक्टिव है। तो आपको, आप जब एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो आप एक पीछे चिप पे करेंगे, वो या गुड होगा या डिफेक्टिव होगा। ये तो नहीं है कि वो दोनों होंगी। So it's very natural that you will know these CDFs, conditional CDFs। और ये जो unconditional CDF है, this is your job to calculate। You should not expect this to get from data directly if the problem is complicated। और बाकी तो मैथ है, आप खुद कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ आपके लिए आसानी के लिए किया है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई पूछ ले, A chip failed right after 4 months। लेट्स से मैं इसको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि एक चिप जो है ना 4 महीने बाद फौरन अगले दिन फारिग हो गया, तो मुझे बताया कि ये चिप क्या था। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? क्या हो गया? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ए डिफेक्टिव चिप? तो ये इस तरह से पूछना ठीक है आपके ख्याल में कि पी एफ डी क्या है? पी एफ डी तो मुझे पता है कि पी एफ डी इज 1/6। तो ये कोई और क्वेश्चन है बेसिकली, बताएं क्या, कौन सा क्वेश्चन बनेगा ये? गिवन दैट अ चिप, given that it has failed, तो P of D given X बताएं। equals to 4 ना करें ना, ये कंटिन्यूस है। less than 4। नहीं, equals to 4 वाला आपका सेंस ठीक था, राइट आफ्टर है ना। कंसेप्चुअली आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ मैथमेटिकली इसको ठीक कर देना। x इज इक्वल टू 4 को मैं कैसे ठीक कर दूं? क्योंकि कंटिन्यूस है ना, तो ये प्लस माइनस मैं लिख दूं ताकि वो मुझे बेसिकली लिमिट लेना पड़े ना कि x इज बिटवीन 4 एंड 4 माइनस h और h अप्रोच 0। अब याद आ रहा है आपको? ऊपर हमने ये किया था ना, क्योंकि अगर आप इसको लेस देन और इक्वल टू 4 करेंगे फिर तो आप क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं। सो इट इज x इज इक्वल टू 4, दिस इज व्हाट यू मीन। लेकिन x इज इक्वल टू 4 आपको मैथमेटिकली प्रॉब्लम कर ले, डिवीजन बाय 0 आ जाएगा उसमें। ठीक है, तो हम वही करेंगे। इसका मतलब ये है कि इस प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ये P ऑफ D हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। ये मैं शायद भूल गया इसको सॉल्व करना, और इसका मतलब बेसिकली ये है, लेकिन मुझे पता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे पता है इसका ये बन जाएगा। अब मुझे बताइए P ऑफ D भी मुझे पता है, ये क्या है? 1/6 है ना। ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अगर चाहूं तो। ये कैसे कैलकुलेट करूंगा? और ये मुझे पता है, ये तो मुझे उधर से पता चल गया होगा ना। इसकी बेसिकली आगे एक और प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है, तो इसको अब रहने दें। अगर आप चाहें तो आप इसको डिफरेंशिएट करें, यहाँ पे आपको x की जगह x लिखना पड़ेगा और वो सारा। सो लेट्स लीव इट फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है ना, आई एम श्योर आई हैव सॉल्व दिस इन अनदर कॉन्टेक्स्ट, बट इफ देयर इज अ प्रॉब्लम लाइक दैट यू कैन सॉल्व दिस। आपको बेसिकली इस की जगह ना, मैं अब इधर ही कर लेता हूँ, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। लेट्स सॉल्व दिस राइट हियर। आपको जब मैंने ये बता दिया ये कि ये डेंसिटी, ये CDF है कंडीशनल, तो कंडीशनल डेंसिटी क्या हो जाएगी? अपर केस को मैंने लोअर किया, आई जस्ट हैव डिफरेंशिएट दिस। तो 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ।
ठीक है, और ये आप लगा लें, ठीक है, और दूसरा भी इसी तरह है। अब आप इसमें ये लगा दें, प्लग कर दें, लेकिन नहीं, मुझे ये भी पता चलना चाहिए ना कि वो जो दूसरी प्रोबेबिलिटी है ये हो जाएगा 1/10 माइनस x/10, और इस पे मैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इसी तरह का निकाल के ना, जिस तरह ये मैंने इसके लिए किया था, मैं इवन ये भी कर सकता हूँ कि ये 6 से अगर मैं यहाँ पे x लिखता, x तो मेरे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन होता, हाँ, और उस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करके मेरे पास मार्जिनल डेंसिटी आ जाती, वो मार्जिनल डेंसिटी इधर आ जाती, प्रोबेबिलिटी, ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक टाइम अप हो गया है, तो हम ये बाकी प्रॉब्लम हम अगला करेंगे, इसके बाद करेंगे फिर। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्वेश्चन तो कोई नहीं। तो ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम इसको कोशिश करेंगे कि हम अगले 2 लेक्चर्स में वाइंड अप करें।